family where students and Sai Dada live and learn together with love, respect and discipline. Every activity, whether it is a study, prayer or a play, reflects spiritual bonding and harmony. The family-like environment here helps to resolve ego and strengthen the simplicity, unity and togetherness among all. Here, education aims at the complete development of every child, social, economic, political, emotional and spiritual. माणूस घडवणारे शिक्षण, man making education. It inspires the students to raise above selfish desire and live a life of service and purpose. Our teachings are based on Indian culture and spiritual values, which help to shape a balanced and responsible human being. Through this education, we aim for self-development, personality building, and social awareness to create individuals who are kind, disciplined, and self-reliant. In short, our Pathshala nourishes inner purity, character formation, wisdom, and self-confidence. Once again, I extend my heartfelt gratitude to all parents, guests for being here today to encourage and bless our students. We hope you enjoy the program and that reflects our values and efforts. Thank you. Now we move forward for a deep prajvana. Light is a symbol of knowledge, purity and positivity. To begin this auspicious program, let us invoke the blessings of Almighty God by lighting a lamp of wisdom. I humbly request our respected guests, Nigalji Bhai, Nigal Kaku, Prabhakar Anna, Vishnu Dada, and Pallavi Tai, to kindly come forward and light the ceremonial lamp. देवो देवे विरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तरेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनकृतेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानस्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनोभिर्यशेमहे देवहित राष्ट्र संस्कृत्याः सम्मानं नवयुवभ्यः आह्वानं पुनरेकवारं वदामि राष्ट्र संस्कृत्याः सम्मानं नवयुवभ्यः आह्वानम् इति अस्माकं सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य थीम् वर्तते। सर्वे युवकाः युवत्यः तस्य कार्यक्रमस्य बहुवारम् अभ्यासः कुर्वन्ति। अधुना राष्ट्रः नाम किम्? राष्ट्रः नाम केवल भूम्याः एकः भागः न वर्तते। राष्ट्रः नाम अस्माकं यद् भारतदेशः वर्तते अत्र ये क्रान्तिकारकाः ऋषिमुनयः महापुरुषाः अत्र स्वस्य जीवनस्य बलिदानं कृत्वा यत् संस्कृत्याः उद्धारम् अत्र कृतवन्तः तेषां यः प्रदेशः ते यत्र वसन्ति तस्य नाम राष्ट्रम् इति वर्तते। संस्कृति नाम सम्यक् कृति इति संस्कृतिः। यत्र सर्वे जनाः सम्यक् आचारः कुर्वन्ति तत् संस्कृति इति उच्यते। नवयुवभ्यः युवकाः तु सर्वे जानन्ति एव आषोडशात् आसप्ततिः यौवनम् इति वेदानां घोषवाक्यः वर्तते। 16 वर्षतः 70 वर्षपर्यन्तं यौवनं वर्तते। तेन सह आह्वानं नाम अत्र भारतदेशे प्राचीनकालतः अस्माकं संस्कृतिः वर्तते। भारतस्य संस्कृते द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति बहु प्रसिद्धवाक्यं वर्तते। अधुना तेन सह अत्र प्राचीनकालतः ऋषिमुनयः अत्र आचाराणां प्रस्थापितवन्तः। तेषाम् अत्र सर्वे अनुकरणं कुर्वन्ति, परन्तु मध्ये मध्ये बहवः विघ्नाः अपि आगच्छन्ति। आङ्ग्लशासकाः वा अन्यत् मोगलाः आक्रमणम् अत्र कृतवन्तः। तर्हि अस्य अस्माकम् अपि केचित् त्रुटिः वर्तते इति कृत्वा किञ्चित् अधःपतनम् अपि जातः। तस्य पुनरुद्धारणार्थं किं करणीयं तत् अस्य कार्यक्रमे सर्वे छात्राः दर्शयन्ति। अधुना अहम् आचार्याः आह्वयामि, ते अत्र सरस्वती पूजनं प्रस्तुतीकरणं कुर्वन्ति।
आचार्याः अस्माकं पुरतः स्वागतगीतं प्रस्तुतीकुर्वन्ति। Now we move on to a thought-provoking performance by the students of class Mati Sanya. The song is on commercialization of education. Today, in several educational institutions, we can see corruption, selfish motives, and unhealthy competition taking over the true essence of learning. Through this presentation, the students of class Mati Sanya aim to highlight these harsh realities of the modern education system and remind us what real education should mean, the development of mind, heart and soul. So let's welcome them with a big round of applause. Shiksha Vipanikaran Gita. शिक्षा विपणितभवत् अधुना विद्यालय महाविद्यालय तथा च विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्रे भ्रष्टभावना शिक्षा विपणित अभवत् अधुना ग्रामे नगरे सर्वत्र देशे जगति दुष्टता मुषकाणां सर्वत्र स्पर्धा शिक्षा विपणित अभवत् विद्यार्थी वा विद्यार्थी नहीं जानन्ति लोभार्थी अत्र तत्र स्वार्थी भावना शिक्षा विपणित अभवत् वृद्धिवर्धन दुष्कार्यम् आत्महत्या स्वीकारणम् नहि भवन्ति आशास्ता शिक्षा विपणित अभवत् अधुना भारं वहन्ति छात्राः ग्रन्थान् रटन्ति शिक्षकाः मनोरञ्जयन्ति
पितरा शिक्षा विपरीत अभवत् अधुना शिक्षा क्षेत्रे उद्योगं चिन्ताव्यर्थं नासीन्द्रियाणां विषता शिक्षा विपरीत अभवत् अधुना शिक्षा विपरीत अभवत् अधुना बुद्ध्या नास्ति प्रबलता आत्मनि च निर्भरता न हि जीवने परिपूर्णता शिक्षा विपरीत अभवत् अधुना शिक्षा विपरीत अभवत् अधुना विद्यालय महाविद्यालय तथा च विश्वविद्यालय विद्यालय महाविद्यालय तथा च विश्वविद्यालय अधुना वर्तमानभारते सर्वे गृहे पश्यन्ति बालकाः कीदृशव्यवहारं कुर्वन्ति सर्वे ग्रामे गत्वा वा गृहे यदा भवन्ति तदा महज्जनानां सह केन प्रकारेण संवादः कुर्वन्ति विद्यालये गत्वा तत्र कीदृशव्यवहारं कुर्वन्ति तद्व्यवहारस्य अधुना द्वितीयवर्गस्य छात्राः एकः नाट्यस्य सादरीकरणं कृतवन्तः एतावत् किमर्थं पश्यतः रुग्णस्याम् आवाम् ऑनलाइन अभ्यासं कुर्मः ऑनलाइन अभ्यासेन नेत्राणि क्षीणानि भवन्ति अतः आवां कथम् अभ्यासं कुर्मः वदतु भवान् एवं वदति मा क्रीडतु अत्र तत्र मा भ्रमतु केवलम् अभ्यासं कुरुतः किं कुर्मः न ज्ञातुं शक्नुमः स्वकार्यार्थम् आवां गच्छावः अभ्यासं कुरुतः अंकगण स्थानं शालायाः वर्गे सुप्रभातम् उपविशन्तु सर्वे गृहकार्य दर्शयन्तु अहं जानामि बहुधा सर्वे विद्यार्थिनः दूरभाषाम् अति पश्यन्ति आचार्य भवतः अध्यापनस्य आवश्यकता नास्ति दूरभाषातः सर्वम् अध्ययनं प्राप्यते अधुना AI युगः समयः वर्तते इदानीं दूरभाषाम् आवश्यकम् अस्ति हानिकारकम् अपि अस्ति सत्यं वदति सः छात्रेषु विवेकम् आवश्यकम् एतदर्थं भवतः आवश्यकता अस्ति आचार्य अंक इदं स्थानम् उत्तमम् अस्ति प्रसन्नताम् अभवत् निसर्गे वयं महती शिक्षां प्राप्नुयामः निसर्गः सर्वोत्तम शिक्षकः अस्ति आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा क्रीडां क्रीडन्तः शुक्ला आचार्यः अस्माभिः सह क्रीडति च सम्यक् अध्यापनम् अपि करोति AI सदृशं युगेऽपि शुक्ला आचार्यः अस्माभिः मार्गदर्शनं करोति सम्यक् शिक्षा न केवलं ज्ञानप्राप्त्यर्थं तथा न प्रसिद्ध्यर्थं केवलं मनुष्यनिर्माणम् एव सम्यक् शिक्षणम् मनुष्यनिर्माणे चरित्रनिर्माणं मनसि दृढतां मत्याप्रगल्भतां तथा आत्मनिर्भरतां च आवश्यकम् अस्ति ईदृशा शिक्षा कुत्र प्राप्तुं शक्नुमः ईदृशा शिक्षा संस्कारनिकेतने प्राप्तुं शक्नुमः किं वयं कर्तुं शक्नुमः आम् इदानीम् एवं गमिष्यामः Thank you so much, Dhruvi, for such a wonderful performance. Now we're moving forward. After that meaningful performance, we will hear something even more special from Pavitra. A student from class Mati Sabnya is here to share her personal experience in our Pathshala. Let us welcome her warmly.
as she expressed her journey and heartfelt feelings about her time in Pashala. Please put your hands together for her. મારું નામ પવિત્ર છે. હું ચોથી કક્ષામાં ભણું છું. આ મારું પહેલું સત્ર છે. મને અહીંયા બહુ જ મજા આવે છે અને હું ગુજરાતી છું. અહીંયા હું શ્લોક મલખમ આવી અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ પણ શીખી રહી છું. અહીંયા અમને કિલ્લા ચડવા પણ લઈ જાય છે. ત્યાં મને બહુ જ મજા આવે છે અને અહીંયાનું વાતાવરણ મને ખૂબ જ ગમે છે અને અહીંયાનું વાતાવરણ ઠંડુ રહે છે. અહીંયા અલગ અલગ રાજ્યના લોકો પણ આવે છે અને હું અલગ અલગ ભાષા પણ શીખી રહી છું. અહીંયા મને રમત રમવાનું બહુ જ ગમે છે અને અહીંયા ખાવાનું પૌષ્ટિક રહે છે એટલે અમે પૌષ્ટિક ખાવાથી વધારે બીમાર નથી પડતા. હું જ્યારે અહીંયા આવી ત્યારે મને પેટમાં દુખતું હતું અને ચાંદાનો પ્રોબ્લેમ હતો, પણ અન્નાએ મને આધાર કરાવ્યો અને તે પ્રોબ્લેમ મને સારો થઈ ગયો અને અમે અહીંયા દરરોજ સવારમાં યોગ વર્ક કરીએ છીએ. તેમાં 108 સૂર્ય નમસ્કાર નીકાળીએ છીએ અને પ્રાણાયામ, યોગ પ્રાણાયામ અને આસન પણ કરીએ છીએ અને અહીંયા મને રમવા ખૂબ જ ગમે છે. ધન્યવાદ. गृहस्थाश्रम व्यवस्था सर्वेषाम् आश्रमाणां पाया वर्तते. तत् कुटुम्बव्यवस्था अपि सर्वस्य संस्कारस्य मूलभूतपाया वर्तते. अधुना वर्तमानभारते दीनहीनकुटुम्बव्यवस्था कीदृशा वर्तते, अस्माकं प्राचीन सम्यक् कुटुम्ब आदर्शकुटुम्बव्यवस्था कीदृशा वर्तते, तद् पठ्यपाठ्यद्वारेण स्मृतिवर्गस्य छात्रः अत्र सादरीकरणं कुर्वन्ति. चाकलेहान् मह्यं रोचते. न मह्यं रोचते. मह्यं ददातु. मम कृते सर्वमिच्छामि. न मम कृते सन्ति सर्वाणि. भो शान्तं भवतु. सर्वे मिलित्वा खादतु. तोताबिं दुष्टमच्छामि. न अहं बटवीं दुष्टमिच्छामि. मह्यं ददातु. न मह्यं ददातु. न मह्यं ददातु. ददातु. किं सदा प्रभुस्य भवन्तु. दृश्यते. किं शर्करा पाकस्य क्रियते. भिण्डिका शाकं कुरु. पनीर शाकं रोचते. मह्यम् आलुकशाकं रोचते. तदैव करोतु. किं करोमि न जानामि. अहं किं श्रान्ता आहारगृहे गमिष्यामि. अस्माकं कृते एकः धनं नास्ति. भवान् सदा दरिद्रः अस्ति. एकं भक्तं कुटुम्बकं सम्यक् कुटुम्बकं माता पितामहः बालबालिका पितामही तुष्यन्ति च रमन्ति च अस्ति जीवने आनन्दम्. दृश्य 4. ग्रामवार्षिक महोत्सवः. कुटुम्बिनः महोत्सवे गच्छन्ति. सर्वे विविधानि फलानि खादन्ति. कोऽपि खादन्तु इच्छामि वा. अहं खादितुम् इच्छामि.
inspiring performance by students of class Ritambara. Youth are the heartbeat of nation. They carry energy, vision and courage to shape the future of our country. It is through their strength, discipline and determination that nation rises to greatness. So let's open our hearts and applaud to the enthusiastic students of class Ritambara as they present their inspiring act, Role of Youth to Build Nation and Culture. Play 1. A group of youths gathered on stage. We have studied history. Abhimanyu taught us that with courage and determination, youth can protect the nation. Yes, and Sambhaji Maharaj showed through sacrifice and struggle that youths must always be ready for the nation. Earlier I taught that youth power should be linked with culture, morality and service. That is the foundation of nation building. Vivekananda's message is also inspiring with knowledge, self-confidence and social service. Youth can take the nation to great heights. Even today, by following their ideals, we can progress in education, discipline and service. That's right. We should aim not only for personal success, but also contribute to nation and culture building. It is the power of youth that will make the future of our nation and culture bright. Play 2. Young men and women sitting and talking on stage. Friends, what's the point of work these days? Little fun and shopping are important, that's life. Absolutely, new clothes, mobile phone, branded things that earn happiness. Getting likes and followers on social media is also a kind of pleasure. Life isn't money and style. Tomorrow we are going to a party. There will be music, food and fun. That's life. We work hard so that we can enjoy a good life. Travel, foodie life, branded things, that's real happiness. But sometimes it feels like we are lame and pleasure and culture and morality and flame behind. But for today, this is a good life. Play 3. The role of Gurukul youth. Friends, Guruji said, today the foundation of nation building is laid in the Gurukul. But how? First of all, through character building. If we make truth, discipline and service a part of our lives, society will follow us. That's right, but not just character. Strength of body and mind is also needed. Only through yoga, exercise and meditation can we face difficulties. And what about intelligence? Intellectual maturity, awareness, wisdom. Through studying scriptures, reflecting and asking questions, knowledge deepens. Finally, the most important is self-reliance. If we learn to manage our lives through labor, skills and knowledge, we will not depend on others. Children, these four pillars, character, strength, wisdom and self-reliance, together make human being, and when a human being is formed, only then will the nation and culture become strong. Gurudev, we take the pledge to adapt these qualities and play our part in nation building. वर्गस्य छात्रः दीपकः तस्य अनुभवं कथयितुं व्यासपीठे आगच्छति। नमस्कार, मेरा नाम दीपक मोतीकर है। मेरे को इधर आके 3 साल हो गए। मैं इधर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जब पाठशाला में आया, जब मेरे को ऐसा लगा कि ये पाठशाला बाकी स्कूल जैसी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि इधर शरीर, मन, बुद्धि का, ये तीनों चीजों का विकास होता है। मैं इधर आया तो इधर अलग अलग राज्यों के, मतलब अलग राष्ट्रों के इधर विद्यार्थी आते, अलग अलग भाषा सीखने को मिलती है। मैं जब इधर पहले आया तो पाठशाला में अलग अलग कला सीखने को मिलती है। मैंने घर पे मल्ला खान नाम से नहीं सुना,
इधर आके मैं मल्लखम्ब खेलता हूँ। मैं तो पानी से घर पे बहुत डरता था, इधर आके मैं भी स्विमिंग भी करता हूँ। इधर जो ताई दादा है हमारे माता पिता समान हमको संभालते और मेरे को इधर का वातावरण बहुत अच्छा है। इधर का वातावरण सीखने जैसा है, मतलब इधर कुछ हम कला सीखते हैं तो इधर मजा आती है। और इधर मेरे को बहुत चीज़ें अच्छी मिली, इधर का पहला वातावरण और अल्लाह जैसे गुरु मिले जो छोटे से बड़े उनको सबको समान देखते। और इधर जो बच्चे वो इधर आके छोटे से बड़े सब एक साथ सूर्य नमस्कार निकलते, रोज अपना अपना कष्ट करते और इधर सब बच्चे बहुत अच्छे रहते। धन्यवाद। Thank you, Deepak. Now, we move on to a very thoughtful and meaningful presentation by the students of class Mega. Now we move on to a vibrant and energetic performance of Povada, beautifully presented by talented students of class Buddhi. Through this Povada, the students will present lovely rhythm, lively rhythm, cultural pride and victorious spirit that shine through every Indian festival. Let's welcome them. Class Buddhi presenting Bharatiya Sanskrute Utsavi. जय तुमो भारतीय संस्कृति उत्सव प्रिया विश्व वंदिता भारतीय संस्कृति। जय तुमो भारतीय संस्कृति। जय तुमो भारतीय संस्कृति। उत्सवस्ति तोरण जय विजय विजयस्य भूरि स्वातंत्र्य विजयस्य भूरि स्वराज्य वर्षस्य आरंभी पर्व जी वर्षस्य आरंभी पर्व जी। रामस्य जन्म महोत्सव भक्ता गीतानि गायन्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्रुति धर्माय जीवनं जीवन्ति। राम धर्म राम सत्य राम भारतस्य पर्वो जी राम भारतस्य पर्वो जी। जय तुभो भारतीय संस्कृति। जय तुभो भारतीय संस्कृति। होली पर्वे रंगानंद प्रहलादस्य भक्ति रूप अधर्म दग्ध धर्म रक्षित समाजे समानतामनुभव आनंददायी रंगोत्सव। जय जय होली पर्व हो जी। जय होली पर्व हो जी। जय तुभो भारतीय संस्कृति। जय तुभो भारतीय संस्कृति। रक्षाबंधन पर्वे भ्राता भगिनी स्नेहं दृढं बन्धनं श्रद्धा पूर्णा संस्कारञ्च ऐक्यं परिवारस्य वाहनं बन्धुत्वमेव वरदं वरन्दं सम्बन्धस्य उत्तम पर्व हो जी। सम्बन्धस्य उत्तम पर्व हो जी। जय तुभो भारतीय संस्कृति। जय तुभो भारतीय संस्कृति। नवरात्रे शक्ते पूजनम दुर्गा भक्ति पूजने स्फुरणम घटस्थापना देवी नक्षत्राणि नृत्यं रूपे नंदं वर्धयन्ति शक्ति रूपा दुर्गा माता। जय दुर्गे माता ओ जी। जय दुर्गे माता ओ जी। जय तुभो भारतीय संस्कृति। जय तुभो भारतीय संस्कृति। दीपावली दीपानद्वारा गृहे प्रकाश उत्सव तपसा नाश ज्ञानस्य प्रसार सर्वे गृहे दीपालोकन्ते दीपावली दीपोत्सव मंगलमहोत्सव मंगलमहोत्सव
संस्कृति। स्वराज्यस्य स्थान वर्तते तत् इतिहासस्य एकं माध्यममपि वर्तते। सर्वे बहुवारं शृण्वन्ति इतिहासः, परन्तु किं नाम इतिहासः? इतिहासः केवल श्रवणस्य विषयः अस्ति वा इतिहासः केवल अध्ययनस्य विषयः अस्ति वा? इतिहासः केवल अस्य विषयः न वर्तते। इतिहासः जीवनस्य विषयः वर्तते। यदा बालकाः अस्माकं प्रेरणादायी इतिहासः पठन्ति तदा बहु उत्साहेन कार्यं कुर्वन्ति, उत्साहेन जीवनं जीवन्ति। परन्तु आङ्ग्लशासकाः अस्माकम् अपि पूर्वजाः इतिहासस्य विकृतीकरणं कृतवन्तः। अस्माकं पूर्वजाः तु पराक्रमं बहुवारं कृतवन्तः, परन्तु अस्माकम् एकं त्रुटिः वर्तते, तस्य लेखनकार्यं न कृतवन्तः। तत्प्रकारेणैव यद् आङ्ग्लशासकाः अत्र आगतवन्तः ते सर्वे अत्र आगत्वा अस्माकं विपरीत इतिहासस्य अध्ययनं कृतवन्तः, परन्तु इतिहासस्य बहु विकृतीकरणं भूत्वा अपि अस्माकं सम्यक् इतिहासः अस्माकं समीपे वर्तते। तद् प्रदर्शयितुम् अहं प्रज्ञावर्गस्य छात्राणाम् आह्वयामि। इतिहास का हुआ विकृतीकरण इनसे भरा गया ज्ञान, इतिहास का हुआ विकृतीकरण इनसे भरा गया ज्ञान, सच्चाई छुपी धूल के नीचे क्रम का पैदा अभियान, सच्चाई छुपी धूल के नीचे क्रम का पैदा अभियान। कब तक हम आगे मुड़ेंगे तब तक सहेंगे चोट, कब तक हम आगे मुड़ेंगे तब तक सहेंगे चोट। सच की किरण जगानी होगी, करनी होगी नई खोज, सच की किरण जगानी होगी, करनी होगी नई खोज। इतिहास यानी क्या हमारे लिए सिर्फ घटनाएं शासक नहीं, इतिहास यानी क्या हमारे लिए सिर्फ घटनाएं शासक नहीं, यह तो संस्कृति का गान है प्यारे, यह तो आत्मा की पहचान है यही, यह तो संस्कृति का गान है प्यारे, यह तो आत्मा की पहचान है यही। हर पीढ़ी को बताना होगा अतीत से जो सीख मिली, हर पीढ़ी को बताना होगा अतीत से जो सीख मिली। सत्य स्मृति को सजाना होगा यही सच्ची रोशनी खिली, सत्य स्मृति को सजाना होगा यही सच्ची रोशनी खिली। पर सच्चा इतिहास मिलना कठिन है, सत्ता ने सच दबा डाला, पर सच्चा इतिहास मिलना कठिन है, सत्ता ने सच दबा डाला। कुछ नाम चमकते रह जाते, कुछ को है अंधेरों ने डाला, कुछ नाम चमकते रह जाते, कुछ को है अंधेरों ने डाला। सच को पाना तपस्या जैसा, खोज में लगे रहना होगा, सच को पाना तपस्या जैसा, खोज में लगे रहना होगा। झूठ के पर्वत तोड़ तोड़ कर हमें दीपक जलाना होगा, झूठ के पर्वत तोड़ तोड़ कर हमें दीपक जलाना होगा। संभाजी महाराज जैसे वीरों का इतिहास बदला गया, संभाजी महाराज जैसे वीरों का इतिहास बदला गया। बलिदानों की गाथा छुपी, झूठ का पर्दा डाला गया, बलिदानों की गाथा छुपी, झूठ का पर्दा डाला गया। उन जैसे कितने महापुरुषों का यशोगान लगाया गया, उन जैसे कितने महापुरुषों का यशोगान लगाया गया। हमें आज फिर से जानना होगा, उनका सम्मान लुटाना होगा, हमें आज फिर से जानना होगा, उनका सम्मान लुटाना होगा। गलत इतिहास के परिणाम कितने भयावह है देखो, गलत इतिहास के परिणाम कितने भयावह है देखो। भ्रमित पीढ़ी खो दे दिशा और आत्मा से कट जाए देखो, भ्रमित पीढ़ी खो दे दिशा और आत्मा से कट जाए देखो। झूठ की नींव पे टिके भवन एक दिन ढह जाते हैं, झूठ की नींव पे टिके भवन एक दिन ढह जाते हैं। झूठ से न राष्ट्र बन सकता, सब में सब बिखर जाते हैं, झूठ से न राष्ट्र बन सकता, सब में सब बिखर जाते हैं। पर जब सच्चा इतिहास मिलेगा तो संस्कृति जाग उठेगी, पर जब सच्चा इतिहास मिलेगा तो संस्कृति जाग उठेगी। राष्ट्र भावना प्रखर बनेगी, हर आत्मा दीपक जलेगी, राष्ट्र भावना प्रखर बनेगी, हर आत्मा दीपक जलेगी। वीरों का बलिदान सुनेंगे, माँ भारती मुस्कुराएगी, वीरों का बलिदान सुनेंगे, माँ भारती मुस्कुराएगी। सच की मशाल उठाकर फिर धरती गाथा गाएगी, सच की मशाल उठाकर फिर धरती गाथा गाएगी। मनुष्य निर्माण का कार्य यही है, सच्चाई का बीज बोना।
मनुष्य निर्माण का कार्य यही है, सच्चाई का बीज बोना, युवाओं में तेज भरना, ज्ञान का दीपक होना, युवाओं में तेज भरना, ज्ञान का दीपक होना। सत्य से ही शक्ति बनेगी, सत्य से ही होगा उद्धार, सत्य से ही शक्ति बनेगी, सत्य से ही होगा उद्धार। झूठ मिटेगा, छाया भागेगी, सच्चा इतिहास पुकार पुकार। झूठ मिटेगा, छाया भागेगी, सच्चा इतिहास पुकार पुकार। धन्यवाद। इतिहास एषः विषयः अस्माकं सर्वेषां कृते अपि चिन्तनीयविषयः वर्तते। येन प्रकारेण अस्माकम् इतिहासस्य विकृतीकरणं भवन्ति तत्र केचित् बालकाः सादरीकरणं कृतवन्तः। इतिहासे यदि पश्यन्ति तदा औरङ्गजेबस्य सम्पूर्णवंशस्य नाम जनाः जानन्ति। लघु लघु बालकाः टिपु सुल्तान् इति नाम सर्वे जानन्ति, परन्तु यदा युद्धः भवति तदा राणा प्रताप महाराजः एकस्मिन् समये एव अश्वस्य उपरि स्थित्वा खड्गप्रहारेण एकस्मिन् एव खड्गप्रहारेण अश्वसहित मनुष्यस्य वा यद् सरदारः वर्तते तस्य कर्तनम् एकवारमेव कृतवान्, परन्तु तद् अत्र बालकाः न जानन्ति, शिक्षकाः अपि न पाठयन्ति। तेन प्रकारेणेव यदा संताजी घोरपडे इति नाम शृण्वन्ति तदा अस्माकं सर्वेषां समीपे एकः प्रसङ्गः आगच्छति। यदा मोगलसैनिकाः मोगलसैनिकानाम् अश्वः जलं न पिबति तदा ते सैनिकाः अपि पृच्छन्ति, किं महोदय जले संताजी दृश्यते वा इति अस्माकं पराक्रमस्य इतिहासः वर्तते, परन्तु अधुना तस्य बहु विकृतीकरणम् अभवत्। अधुना ऋतम्बरवर्गस्य छात्रा अनन्या तस्य अनुभवं कथयितुम् अत्र व्यासपीठे आगच्छति। शुभ संध्या। मम नाम अनन्या अस्ति। अहं दशमकक्षायां पठामि। अहं मम अनुभवं प्रकटयितुम् इच्छामि। अहं तेलङ्गानातः अस्मि। मम पितुः नाम श्रीनिवासः अस्ति। इदं मम द्वितीयवर्षम् अस्ति, परन्तु अहम् एकं वर्षं बहिः गुरुकुले अपि स्थितवती। यः आनन्दः तत्र न आगतः यत् पाठशालायां निवासेन आगतः। वक्तुं महान् आनन्दः भवति यत् एतत् मम शारीरिकम्, आध्यात्मिकं, मानसिकं, सामाजिकविकासं च भवति। यत् पाठशालायाः ध्येयमस्ति मैन् मेकिंग एजुकेशन, योगः कर्मसु कौशलम्। वयं सर्वे प्रतिदिनं 8,100 सूर्यनमस्कारान् कुर्मः, तेन शारीरिकविकासं भवति। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। पारायणं, मननचिन्तनं, निधाध्यासं कृत्वा आध्यात्मिकविकासं भवति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यथा मनुष्यः जीर्णवस्त्राणि त्यक्त्वा नूतनवस्त्राणि गृह्णाति तथा स्वदोषान् त्यक्त्वा सद्गुणान् आनेतुम् अभ्यासं कारयति, तेन मानसिकविकासं भवति। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं, शरीरं धर्मस्य साधनम् अस्ति। समूहेन विविधानां क्रीडानां क्रीडनेन सामाजिकविकासं भवति। अहं पाठशालायाम् आगत्य संस्कृतभाषायाः अभ्यासम् आरब्धवती। अहं च केनोपनिषदं कण्ठस्थं कृतवती। पाठशालायाम् अनेकान् भाषाः ज्ञातुं लभ्यन्ते, यथा संस्कृतं, मराठी, गुजराती, निमाडी, तेलुगु, हिंदी, आङ्ग्लभाषां च। मह्यं पाठशालायां मल्लखां क्रीडां बहु रोचते। उद्धरेदात्मनात्मानम्, आत्मानम् अवसादयेत्, आत्मना आत्मानम् उद्धरते, आत्मानं न अवसादयेत्। स्वपादेषु स्थातुं प्रेरणा पाठशाला ददाति। युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु वयं सर्वे प्रतिदिनं ब्रह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठामः, योगं कुर्मः, हरितपात्राणां रसं पिबामः, पौष्टिकं सात्विकं च आहारं खादामः। इदं भोजनम् अस्माकं शरीरस्य मनसः च उत्तमं भवति। पाठशाला अस्मान् शिक्षयति यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भवतः स्वकर्तव्यानां पालनस्य अधिकारः अस्ति, परन्तु कर्माणां फलानां न। यत् सर्वं शिक्षयति संस्कारनिकेतन नामिका वैदिकपाठशालां हृदयपूर्वक नमस्कारं कुर्वन्तः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। Thank you, Ananya. Now, we move on to a very thoughtful and meaningful presentation by the students of class Megha.
Just as the sting of scorpion causes swelling and pain in the body, in the same way, when a person is bitten by inner poison such as lust, greed, jealousy and anger, the mind and heart become polluted and restless. So let's welcome them, talented students of class Mega, as they present this deep and thoughtful provoking act, Man Antakaran Pradushan. Let's encourage them with a big round of applause. मम शरीरे स्वेदागतः तेन मम प्राणान् गृहीत देवाहं करोमि मनुष्य वृश्चिक महावृश्चिक मम वेदना अति भयानक कठिनानुभव शरीरे मम देवाहो देवा विवाहं करोमि अवतारे एतद् वृश्चिक अपसारे तमोगुणं दृष्टतमोगुणं कथम् अस्ति? यदि वक्षस्थलस्य गुब्बार गर्वेण व्याप्तः अस्ति तर्हि पीतं स्थापयित्वा किञ्चित् वायुं न्यूनीकरोतु। देवाहो देवा किमहं करोमि? सत्त्वगुणं प्रयोजयन्तु मारयन्तु सकलतमोगुणं सत्यमागतं तमकिञ्चित् अवशिष्टं जनार्दनेन कृतं शान्तं देवाहो देवा किमहं करोमि? पृथ्वी वायु जलमाकाशं सृष्टि अखिलं प्रदूषितं मानव प्राणी भयंकरं तेन हि कृतम् अत्याचारं वसुन्धरा अस्माकं मातरम् उपाय तस्मै रामबाणं सत्संगतिश वन्दे मातरम् देवाहो देवा किमहं करोमि? सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच जो मेहमान आए हैं, हमारे टीचर डॉक्टर निगल जी भाई और निफाड तालुका प्रांत शशिकांत मंगलोळे साहब और ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर वो भी हमारे साथ है। हम यहाँ पर 2014 से गुरुकुल चला रहे हैं। जब भी गुरुकुल शुरू हुआ था तभी शशिकांत मंगलोळे साहब नासिक निफाड में ही थे और उनके सहयोग से हमारा गुरुकुल चलाना सहज हुआ, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलोळे साहब थोड़ा समोर या प्लीज। या सुनिए, अभी जो मेहमान उपस्थित है वो टेक्निकल बायोडाटा उनका बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी परिचय करने के लिए मेरे सामने यही दिखता है कि वो मनुष्य करके एक अधिकारी पद पर बैठे हैं और वो सभी को देखते हैं और काम करते हैं। जैसा पाठशाला का उदाहरण है कि पाठशाला चलाने के लिए जो कोई सरकारी या तो शासकीय तांत्रिक बातें पूर्ण करनी होती है वो पूर्ण करने में सहायता देना, ये हमारा अनुभव है। लेकिन निफाड तालुके में बहुत सारे लोगों का अनुभव यही रहा है कि वो बड़े सहयोग से हर एक काम में दिलचस्पी लेकर काम करते हैं
और इसीलिए उनको देरी हुई और वो यहाँ पर थोड़े देरी से पहुंचे। तो ऐसे मेहमान जो एमपीएससी स्पर्धा देकर यहाँ पर रिक्रूट हुए हैं और बाद में अभी तो बहुत सर्विस उनकी हुई है। अभी अनुभव, इसके पहले वो नासिक जिले में, नासिक सिटी में डिप्टी कलेक्टर की चार्ज उनके पास था, शायद रेसिडेंशियल कलेक्टर थे। तो उनके साथ भी जो है मैं बोले कि वो ट्रेनिंग डिप्टी कलेक्टर है, वो भी निपाड़ में है। और ऐसे अफसर हमें ये कार्यक्रम देखने के लिए मिले हैं। ये सभी बच्चे यहाँ पर कुल मिलाकर 80 के आसपास बच्चे हैं और 9-10 फैमिलीज यहाँ पर रहती है जो उनके साथ 24 घंटे हैं और उनके साथ खाना, उठना, सब पढ़ना, सभी खेल खेलना, ये सभी करते हैं। और जैसे ये पदाधिकारी करके मेहमान है, वैसे ही हमारे बीच जो हमारे साथी है, हमारे टीचर है डॉक्टर निगल जी भाई और काकू, जिस अन्ना को आप सब पहचानते हैं, वो अन्ना के और मेरे वो टीचर रहे, ऐसे डॉक्टर निगल जी भाई हैं, वो हमारे बीच बैठे हैं। हम उनकी सहधर्मचारिणी हम निगल काकू बोलते हैं, वो यही करंद गांव की है और उनके मेरे साथ ऐसे शिक्षक मिले, ऐसे अधिकारी जो सभी लोगों का सहायता सहजता से करते हैं, ऐसे अधिकारी भी हमारे साथ हैं। ये सब हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं। संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला 2014 से जो कुछ कर रही है, उनका और हमारा संबंध 2014 में आया था। उनके बाद उनको यहाँ उनके बहुत व्यस्तता के कारण आना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी निफाड़ में आए तो उनको रिक्वेस्ट की कि आपको आना है, तो उन्होंने बहुत आसानी से हाँ कहा कि मैं आऊँगा। और उनकी ये विशेषता रही है कि मैं आऊँगा, आपको लेने आने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुझे नहीं चाहिए, मैं आऊँगा, खुद चला आऊँगा। ये उनकी विशेषता है। और उनके साथ ऐसे अगर ट्रेनिंग अफसर पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसा ही कितना और गिराएंगे, ऐसी आशा है। मैं अभी अन्ना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रमुख अतिथि का स्वागत करें, सत्कार करें। विनती करता हूँ कि वो निगम जी भाई और काकू का सत्कार करें, वहां जाकर करें। जैसा संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला एक यूनिट है, नासिक में भी संस्कार निकेतन एक परिपूर्ण शाला करके उस कार्यक्रम में आगे आए। महाकवि कालिदास मंदिर में हम ये कुटुंब मानते हैं, ये कुटुंब है, इसलिए यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ पे कोई अध्यक्ष या तो ऐसा नहीं जो फॉर्मल सरकार को दिखाना होता है वो है, लेकिन फिर भी जो व्यवहार चलता है हम सब ताई दादा है। अन्ना सबसे बड़े दादा है, इसलिए बड़े दादा उनको कहते हैं, पल्लवी ताई है भाई को, और बहुत सारे साथी हैं। हम सब कुटुंब मिलकर करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनफॉर्मलनेस आपको दिखाई देगा। शायद अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये कुटुंब करके इसलिए ये घरगुती या तो कौटुंबिक सोहरा जैसा आप मानोगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। और यहाँ सामने बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप कार्यक्रम
एक दोन लाइन इंडिविजुअल सेट ग्रुप वेलकम मेरे कान्हा ओ कान्हा पहुंच जा बेटा
काय हां हां Get ready, start it.
4, 5, 6, close. एक, दोन, बनवला. एक, दोन, आम्हाला त्या शिक्षकांचा त्या काही शिकवणार आहे त्यांचा आम्हाला ओपन. एक, दोन, तीन, चार, पाच, क्लोज. एक, दोन, लाईन. नंबर 1 स्टार्ट. एक, बाकीचे बसून घ्या मुलं त्यांचे पाळे त्यांचे. दोन, बैठ जाओ बाकी. तीन, चार, ओपन. एक, दोन, तीन, चार, पाच, क्लोज. एक, दोन, लाईन. Individual sets. Get ready. Start please. Get ready. Start please.
Get ready. Start. 1 2 line. Individual sets, get ready.
मेरे राम ने बनाया मेरे को जो मैं आज पुराना नाम जिंदगी का मेरे अभिमान जिसके बाप में है दम मेरा रूप को दिखाया आज दुनिया में मुझे आज मेरा भगवान श्री राम ने सिया संग मेरे हनुमान किसी भक्त से है सारा रावण जिन्हें सजाते सब बेच राम नाम कोई साधारण नहीं सृष्टि का इस आधार है वह धन्य हो धरती मैया जब राम अवतार धरी राम नाम कोई साधारण नहीं सृष्टि का इस आधार है वह महावीर स्वयं मन में जपे अवतार ले हनुमान धरी रघुपति राघव राजा राम जय श्री राम जय श्री राम पतित पावन Start with. सारी है पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा Service, get ready, start it.
श्री गुरवे नमः। एक साथ सावधान, एक साथ नमस्ते, 1 2 3 4, एक साथ कमाल विसर्जन। बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, सोनमठ वस्ताद की जय, सोनी वस्ताद की जय, बोल बजरंगबली की जय, बोल बजरंगबली की जय। नमस्ते। सभी ने वैसा ही रुकना है, 1 मिनट सूचना है। नमस्कार। आज के हमारे समारंभ के अध्यक्ष माननीय शशिकांत मंगरुले सर, जिनके लिए मैं काफी सौभाग्यवान समझता हूं कि उनके अंदर मुझे पिछले 2 हफ्ते से ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे मैं प्रोफेशनली डिप्टी कलेक्टर हूँ। मैं थाने जिले से आता हूँ। मेरा पूरा जो अपब्रिंगिंग है वो एक शहरी लोकेशन से है, तो ये मुझे एक काफी नया एक अनुभव रहा आपके साथ यहाँ पे पिछले 1 घंटे में जो भी यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे कुटुंब का यहाँ पे अभिनंदन भी करता हूँ, शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये लगे कि ये जो नज़ारा है, ये तो मैंने खाली इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट वहां पर देखने को मिला था। ये सच में काफी हैरान करने वाला था मेरे लिए कि ऐसे परफॉर्मेंसेस हमारे यहाँ, वो भी एक स्वयं चलित संस्था जो है, क्योंकि पहली बार दादा जब आए थे ऑफिस में, तभी वो मेरा पहला दिन था ऑफिस में, एंड सर ने उन्होंने पूछा था कि आप कोई शासकीय योजना का कोई मदद वगैरह लेते हो क्या, उसके लिए आपको कोई मदद वगैरह चाहिए क्या, ऐसा सर ने पूछा था। तो सर ने काफी विनम्रता के साथ उसको मना कर दिया था, कहा था कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग हमारे ही हिस्से से हमको जो मदद मिलती है उसी से हम लोग काफी अच्छी संस्था रन करते हैं। तो मेरे लिए भी वो काफी उत्सुकता की बात थी कि मैं यहाँ पे आके देख सकूं कि यहाँ पे कैसे कामकाज चलता है। तो एक पैरेलल अगर मैं सोच सकूं इसके लिए, जो आपने मलखंब का यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, तो वो कैलिस्थेनिक्स है, जो हम लोग जो यूरोप का और अमेरिका में हम लोग जो देखते हैं, लेकिन उसके भी बारे में काफी लिमिटेड जानकारी है। फिर भी एक प्राइमा फेसी मेरा अंदाज ये है कि वो जब भी आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल होगा कैलिस्थेनिक्स, उसको काफी नवाजा जाता है। इट इज जस्ट दैट कि हम लोग को ये जो हम लोग के जो टैलेंट है, जो परफॉर्मेंसेस है, ये काफी बड़े स्टेज पे, और उसके लिए एक जागृति होनी जरूरी है। स्पेशली जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए ये एक पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है। मैं काफी सेल्फ डिफेंस में एक इंटरेस्ट रखता था, जिसके लिए मैं कराटे करके एक प्रोग्राम आता है या फिर एक एक्सरसाइज है, जिसके लिए एक ट्रेनिंग होता है कुछ सालों का, वो मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर था। मैं इतनी फैसिलिटीज थी नहीं कि मैं उसको पूरा कर पाऊँ, फिर भी मैंने 2-3 साल में वहाँ पे ब्राउन बेल्ट तक मैंने वो अचीव कर पाया। और काफी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो जो हम लोग सीखते हैं बचपन में, ये जो एक्सरसाइजेस अभी आप करते हैं, उसका आपको फ्यूचर में भले आप अभी क्या पढ़ाई के दौरान इतना टाइम मिलता है नहीं कि हम लोग एक्सरसाइज करें, या फिर जो हम लोग का डेली जो रूटीन होता है खाने का या फिर पढ़ाई का, या जो एक्सरसाइज करते हैं बाहर जाके प्लेग्राउंड्स में हम लोग गेम्स खेलते, उतना वक्त मिलता नहीं है। लेकिन ये अगर आपका फाउंडेशन होगा तो आई एम श्योर कि मान लो एक 15 साल के बाद जब भी हम लोग काफी करियर के बारे में सीरियस हो जाते हैं, उस वक्त भी मान लो थोड़ा सा एक हेल्थ एंड जो अपना पर्सनालिटी का जो गोल होता है वो भले ही थोड़ा सा बैक बर्नर पे रह जाए, फिर भी आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आप बहुत अच्छा पर्सनालिटी आपका आगे मेंटेन कर पाएंगे। आपका जो फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस है, आई एम वेरी श्योर कि इतने फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस अगर आपके पास होगा तो आपके लिए आगे चल के आपके करियर में कोई भी ऐसा एक चैलेंज नहीं होगा कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। आपको बस ठानना है और बस उस दिशा में आपको जाना है। आपके पास काफी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ है, जिसके बदौलत आप काफी
कभी अपनी लाइफ में आगे जा पाओगे। उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला का जो 2025 का दिवाली पालक स्नेह मिलन, इस कार्यक्रम में हमें यहाँ पे बुलाया। सचमुच में मैं यहाँ पे खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे मुझे देखने को मिला। एक अपनी जो वेदशाला ये है संस्कार निकेतन, इसका अलगपन क्या है ये मुझे आज यहाँ पे महसूस करने के। मैंने अन्ना से सुना था कि यहाँ पे हम क्या क्या यहाँ पे करते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था अन्ना से, तो यहाँ पे 6 स्टेट के यहाँ पे अलग अलग स्टेट जो अपने इंडिया के स्टेट है वहाँ से स्टूडेंट आए हैं और उनके पालक भी यहाँ पे आज गार्डियन जो है पेरेंट्स वगैरह वो भी आए हुए हैं। सच में जो एक अपनी भारतीय परंपरा है, एक गौरवशाली परंपरा है, अपना भारत का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और ये इतिहास में सबसे एक बड़ी बात थी अपनी गुरुकुल परंपरा। गुरुकुल परंपरा में जो कुछ बच्चे थे और शिक्षक थे एक ही जगह रहना और सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ उनकी पढ़ाई का था, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा आदमी, एक इंसान बनना, ये अपने गुरुकुल परंपरा में होता था। हम जब बात करते हैं कि हमारा भारत एक महाशक्ति होने वाला है, तो उसी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है, उसमें जो संस्कारक्षम जो अपने नागरिक बनेंगे वही एक अपने भारत को एक महाशक्ति बना सकता है। लेकिन अच्छे नागरिक कहाँ से बनेंगे? जब उनको बचपन में से उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, तभी जाके एक अच्छा वो इंसान सोसाइटी में बना सकेगा। और अच्छे जो अपने इंसान बनेंगे तभी एक अपनी अच्छी सोसाइटी बनेगी और ये सोसाइटी बन के फिर जो अपना पूरा भारत देश है वो एक महासत्ता बन सकेगा। और उसके जो कुछ फाउंडेशन है, उसकी नींव जो है, ऐसे अपने जो छोटे छोटे जो संस्कार केंद्र है वही से अपनी ये निपजता है। जो कुछ अपनी भारतीय परंपरा है वो हमने अभी जिंदा रखा है। अन्ना जैसे जो लोग हैं जो पूरे डेडिकेटेड है कि जो पूरा अपना जो लाइफ है इसके लिए दे देते हैं कि एक मुझे नई परंपरा यहाँ पे चालू रखना है, एक नया जनरेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। सही में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि जो अपने पेरेंट्स ने यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए अन्ना के हाथों में दिए है। और जो उनका टैलेंट देखा जाए तो सही में एक अच्छे संस्कारक्षम यहाँ पे नागरिक बनने वाले हैं। एक परिपूर्ण जो कुछ पढ़ाई होगा या उनका जो कुछ बाकी करिकुलम होगा तो सही में बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे आके जो पेरेंट्स है वो भी खुद को बहुत एकदम अच्छे से प्राउड फील कर रहे होंगे कि हमने जो बच्चे यहाँ पे भेजे थे। सही में पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भारतीय परंपरा है, जो अपने देसी खेल है वगैरह, उसमें भी एक निपुणता वो प्राप्त कर रहे हैं और जो अपनी भारतीय परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सही में यहाँ पे मुझे आके एक बहुत अच्छा महसूस हुआ और बार बार आने को मुझे यहाँ पे पसंद आएगा। एक शॉर्ट नोटिस पे आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी अगर अगला कुछ प्रोग्राम वगैरह रहेगा तो जरूर मैं यहाँ पे आऊँगा। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। After listening these valuable thoughts and kind words of our respected guests, let us move on to the next part of our program. Please welcome the girls from Pathshala with हम दीर्घ शिक्षा के